ਨਮਸਕਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ ਪ੍ਰਾਈਮ। ਜਗਜੀਵਨ ਰਾਮ ਜੀ ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੌਥੇ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਬੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਜ 5 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਕਰੀਬੀ ਮਹਿਤਪੁਰ ਵਿਖੇ ਡਾਕਟਰ KR ਆਰਿਆ ਵੱਲੋਂ ਬੜੀ ਹੀ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਵਜੋਂ DC ਉਹਨਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਬੂ जी ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਅਰਪਿਤ ਕੀਤੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਬੂ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਆਏ ਹੋਏ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਆਏ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਡਾਕਟਰ KR ਆਰਿਆ ਵੱਲੋਂ ਸਨਮਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਬਾਬੂ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਓ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਦੀ ਮਹਿਤਪੁਰ ਤੋਂ ਇਹ ਖਾਸ ਰਿਪੋर्ट। जगजीवन राम का जन्म 5 अप्रैल 1908 ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬਾਬੂ ਜੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਗਜੀਵਨ ਰਾਮ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਲਿਤ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਸੀ। ਗਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਦਬੇ ਕੁਚਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਸੀਹਾ ਬਾਬੂ ਜਗਜੀਵਨ ਰਾਮ ਦੇ ਨਾਂ 50 ਸਾਲ ਮੈਂਬਰ ਸੰਸਦ ਰਹਿਣ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਲੜਦੇ ਰਹੇ। ਉਹ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੀ। ਉਨੀ ਦਿਨੀ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਮਾਸ ਲੀਡਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਗਨਨਾਥਪੁਰੀ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਲਈ ਜਗਜੀਵਨ ਰਾਮ ਨੇ ਵੀ ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਇੰਦਰਾਨੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਡਾਇਰੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਇਸ ਘਟਨਾ ਕਾਰਨ ਮੇਰੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਅਧੂਰੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਮਦਨ ਮੋਹਨ ਮਾਲਵੀਆ ਆਰਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਲਈ ਆਏ। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के संस्थापक जगजीवन राम ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮਿਲੇ। ਮਾਲਵੀਆ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਉੱਤੇ ਜਗਜੀਵਨ ਰਾਮ ਦੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਪਕੜ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਬੂ ਜਗਜੀਵਨ ਰਾਮ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ BHU ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੌਸਟਲ, ਮੈਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਲਾਸ ਤੱਕ ਵਿਤਕਰੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਨਾਰਸ ਹਿੰਦੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਲਕੱਤਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕੀਤੀ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਹੁਨਰ ਵਧੇ, ਜਿਸ ਨੇ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ। ਜਗਜੀਵਨ ਰਾਮ ਵਿੱਚ ਨਾਇਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਸਨ। ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਸ਼ਾਂਤ ਸੀ, ਉਨੇ ਹੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਕਦਮ ਤੇ ਵਿਤਕਰੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਫੈਲਾਈ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਦਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਰਾਹ ਚੁਣੀ। मीरा कुमार बाबू जगजीवन राम की बेटी है, जो UPA ਦੇ शासन दौरान लोक सभा की स्पीकर रह चुकी है। उन्होंने अपने पिता के जीवन का एक दिलचस्प किस्सा दसिया। उन्होंने दसिया कि जगजीवन राम 10वीं जमात विच फर्स्ट डिवीजन नाल पास हुए। उन्हां कोल होर पढ़ाई लई पैसे नहीं सन। उन्हां दी मां मदद लई एक सानक नन कोल पहुंची। नन ने न सिर्फ उन्हां नूं लखनऊ के अपने ईसाई स्कूल विच मुफ्त सिक्ख्या दी पेशकश की, सगों उच्च सिੱਖਿਆ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਭੇਜਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੰਨਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜਾਓਗੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਵੀ ਬਦਲੋਗੇ। ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਮੈਂ ਉਸ ਦੀ ਚੰਗੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਾਂਗੀ। ਜਗਜੀਵਨ ਰਾਮ ਇੱਕ ਯੋਧੇ ਵਰਗੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸਨ, ਭਾਰਤ ਨੇ 1971 ਦੀ ਜੰਗ ਜਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨਾਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਸਨ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਆਈ ਸੀ। ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪੱਕੇ ਵਫਾਦਾਰ ਆਗੂ ਸਨ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਗਾਈ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਗਏ। ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਮੋਰਾਰਜੀ ਦੇਸਾਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਤਾਂ ਉਹ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ। ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਦੀ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ बतौर मंत्री कैबिनेट रहे, क्योंकि कैबिनेट ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਭੂਮਿਕਾ ਸੀਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਖੂਬੀ ਨਿਭਾਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੇਟੀ ਮੀਰਾ ਕੁਮਾਰ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਮਿਲਿਆ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਸਦਕਾ ਦੇਖੋ ਐਡੇ ਮਹਾਨ ਲੀਡਰ ਜਿੱਤੇ ਮੀਰਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ, क्योंकि सारे पता है कि लोकसभा के बीच इनको दो लोगों को इस देश में विशेष नाम से संबोधित किया गया था। एक बापू जी जो कि हमारे महात्मा गांधी जी थे, और बाबू जी, सिर्फ दो ही लोगों को नाम से संबोधित किया गया। बाबू जी यानी ज्यादा पढ़े लिखे तो उस टाइम बाबू जी भी पढ़े लिखे व्यक्ति होते थे और इनको बाबू जी के नाम से जाना जाता था। महात्मा गांधी को बापू जी के नाम से जाना जाता था। तो आज वो महान व्यक्ति, वो बाबू जगजीवन राम अपने आप में एक संस्था थे, क्योंकि वो उस गरीब घर से निकल करके
आरा में उनका जन्म हुआ बिहार में, और वहां से वो निकले और पूरे देश में उनका नाम था। तो आज हम बाबू जगजीवन राम जी को 116वीं जन्म दिवस पे हम सभी उनको नमन करते हैं और उनकी देन जो उन्होंने किया देश के लिए उसको हमेशा याद रखते हैं। उनकी पुत्री बहन मीरा कुमार, क्योंकि हम उनको बहन जी कहते हैं, हमारा डीसा बहुत पुराना संबंध है और अक्सर मुझे अपना छोटा भाई करके कह के संबोधित करती हैं कि डॉक्टर आर्य मेरा छोटा भाई है। तो वो महान शख्सियत की बेटी, वो खुद में भी एक महान शख्सियत, क्योंकि बहन मीरा कुमार भी IFS है, इंडियन फॉरेन सर्विसेज से रिटायर होकर के रिजाइन करके वो पॉलिटिक्स में ज्वाइन किया था उन्होंने। तो वो भी अपने आप में एक हस्ती है, क्योंकि राजनीति में पढ़े लिखे लोग बहुत कम आते हैं। लेकिन मैं याद दिलाऊं आपको कि बहन मीरा कुमार बाई इलेक्शन हुआ था यूपी में, बिजनौर में। तो उस बिजनौर के जो इलेक्शन हुआ, उस बिजनौर के इलेक्शन में 3 शख्सियत आपस में इलेक्शन लड़ी थी, रामविलास पासवान, मायावती और बहन मीरा कुमार। उस बाई इलेक्शन को लड़ाने के लिए स्पेशली राजीव गांधी ने इनको इनवाइट किया था। राजीव गांधी ने निवेदन करके वहां से इलेक्शन लड़ाया और उस इलेक्शन में मीरा कुमार विजयी हुई, जो कि हमारी फॉर्मर स्पीकर लोकसभा रही। नहीं होती, मनुष्य तो मनुष्य होता है। तो ऐसे महान व्यक्ति थे और मैं उनकी चर्चाएं करूं तो आप हैरान होंगे कि जब भी आपको याद हो, एक फोटो है उनका जो पहले मंत्रालय में पहला जो भारत आजाद हुआ था, स्वतंत्र भारत की जो कैबिनेट बनी थी, उसमें सबसे यंगेस्ट मिनिस्टर बाबू जगजीवन राम जी, और उस टाइम जो है उस श्रम मंत्री रहे हमारे दूसरे महान श्री भीमराव अम्बेडकर जी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के कानून मंत्री बने। यानी उस मंत्रालय में जिसमें प्रधानमंत्री नेहरू जी होते थे और बहुत महान हस्तियां उस मंत्रालय में रही। और आप हैरान होंगे उस चित्र को देख करके, वो चित्र है नहीं तो वो उसमें मैं आपको ये जरूर बताना चाहूंगा कि जब हमारा देश आजाद हुआ था तो उस मंत्रालय में हर समाज के, हर जाति के, हर धर्म के लोग। मैं आपको एक पर्सनल अनुभव की बात बताना चाहता हूँ कि क्यों आज जो बात है और बाबूजी को हम याद कर रहे हैं, क्यों ये चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो 2004 में जो है वो मैंने कानून की पढ़ाई शुरू की, और जब तक जिसने कानून नहीं पढ़ा है, आप ये देखेंगे कि हमारे जितने भी स्वतंत्रता सेनानी थे, बहुत सारे जो है वो कानून के पृष्ठभूमि से आए थे। उन्होंने सबने कानून पढ़ रखा था कहीं ना कहीं, और वही लोग जो है वो बाद में संविधान की जो असेंबली बनी उसमें वो लोग थे, और उन्होंने संविधान का जो वो निर्माण किया। तो बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानियों की पृष्ठभूमि कानून की रही। तो जब हम कानून में जब पढ़ाई शुरू की तब हमने संविधान का एक पूरा वो होता है, हमारा चैप्टर होता है, जब पूरा एक आर्टिकल संविधान का पढ़ाया जाता है, और उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो आर्टिकल है, सबसे महत्वपूर्ण जो अंग है संविधान का, वो आर्टिकल 14 है। 14 की बात की जाती है, आर्टिकल 14, और उसी को मतलब आत्मा माना जाता है, संविधान की आत्मा माना जाता है। तो तब जाके हमें ये अनुभव हुआ कि 2 लाइनों में संविधान की आत्मा थी कि सभी भारतीय जो है वो कानून के सामने जो है वो समान होंगे, और दूसरा पार्ट है उसका, उसी वाक्य का पार्ट है कि सभी के साथ जो है समानता का व्यवहार किया जाएगा। समान होंगे और समानता का व्यवहार किया जाएगा। अब ये सुनने में बहुत ही शब्द बहुत जो है वो लगते हैं कि कोई भी लिख देगा और हमने मान लिया, उस तरह का शब्द लगता है कि मतलब लिखा हुआ ही तो है कि समान होंगे और समानता का व्यवहार होगा सबके साथ। बट ये बहुत ही गहन जो है वो बात इन लोगों ने लिखी थी, जिसमें बाबू जगजीवन राम जी भी जिनमें सम्मिलित थे, क्योंकि बहुत रूढ़िवादी एक जो समाज था उसमें स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी गई और एक नए राष्ट्र का निर्माण हुआ। उस समय ये एक बहुत बड़ी बात थी, और आज भी एक बहुत बड़ी बात रहती है कि सभी समान हैं। उसका अर्थ क्या है कि सभी समान होंगे, उसका अर्थ जो है वो बड़ा गूढ़ है, हम मान नहीं सकते, क्योंकि हमारा जो समाज है उसमें बहुत तरह की जो है वो
अलग अलग असमानताएं हैं। इसमें आप धर्म की असमानता मान लो, सब अपने आप को अलग मानते हैं। जाति की मान लो, जाति के अंदर भी हमने उपजाति भी बना रखी है। उपजाति के भी लोग अपने अपना अलग अलग मानते हैं कि हम इससे ऊपर है, वो उससे ऊपर है। उसके बाद जो है महिला पुरुष की असमानता है। उसके बाद जो है वो अमीर और गरीब की असमानता है। तो बहुत सारी तरह की जो असमानताओं से हमारा देश ग्रसित है और समाज ग्रसित है, और आज भी जो है वो एक चुनौती है हमारे सामने। तो ऐसे परिवेश में ये कहना कि सभी समान होंगे और उनके साथ जो है समान व्यवहार जो है वो सरकार करेगी, क्योंकि सरकार का ये जो है उसके ऊपर लागू होता है, तो वो बहुत जो है वो बड़ी बात थी उस परिवेश में इस चीज को लाना। तो एक आदर्शवादी जो लोग थे वो उन्होंने संविधान का निर्माण किया, उसमें ये भी एक उत्कृष्ट और आदर्शवादी जो है और इनके जीवन के संघर्षों से, ये बात जो है वो इनके जीवन के संघर्षों से निकल के आई है। जब तक हम खुद असमानता का अनुभव अपने जीवन में नहीं करते, जिसको कहते हैं ना अनफेयरनेस, कि हम जब तक खुद उसके शिकार नहीं होते कि हमारे साथ भेदभाव होता है, तब तक हम ये नहीं जान सकते कि समानता का जो है वो महत्व क्या है। तो इन्होंने अपने जीवन में देखा कि वो भेदभाव का और उस तरह का समाज में बहुत ज्यादा जो है अंदर तक वो सारी चीजें मानसिकता में बसी हुई हैं, और इन लोगों ने अनुभव किया, और उसी अनुभव के आधार पे इन्होंने ये तय किया कि भाई भविष्य का भारत ऐसा नहीं होना चाहिए जहाँ किसी बच्चे के साथ स्कूल में भेदभाव हो, किसी पढ़ने वाले के साथ जो है कॉलेज में भेदभाव हो, कहीं नौकरी में कोई जाए तो वहां पर भेदभाव हो, आगे भी समाज में जो है लोग एक दूसरे से मिलजुल ही ना सके, एक दूसरे के साथ बैठ ना सके, एकजुट ना हो सके। क्योंकि एक बहुत बड़ा कारण हम लोगों का देश जो है वो विदेशी ताकतों के गुलाम रहा। एक बहुत बड़ा कारण ये था कि हम पहले से ही बटे हुए थे, तो उनके लिए बहुत आसान था कि एक दूसरे से लड़ाना, जिसको डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी कहते हैं ब्रिटिश की, तो ये बहुत उनके लिए आसान हो गया था। तो ऐसे में जब समाज बटा हुआ, अगर नए राष्ट्र का निर्माण हो फिर भी बटा रहेगा, तो ये हमेशा देश की एकता के लिए खतरा रहेगा कि लोग जो है वो पहले ही बटे हुए हैं, उनको कोई भी जो है उनका एक्सप्लॉइट कर सकता है। तो इस सब को देखते हुए बहुत दूरदृष्टि से बाबूजी ने और अन्य जो स्वतंत्रता सेनानी जो इनके साथी थे उस टाइम के, उन्होंने ये निर्णय लिया कि हमने संविधान की मूल आत्मा में जो है वो समानता या समता जो है उसका भाव जो है वो रखना है, और ये सब तरह की समता। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮੋਲ ਕਾਲੀਆ ਪਾਰਕ ਦੇ ਲਾਗੇ ਆਰਕੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 24 ਘੰਟੇ ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਦੇਖਰੇਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਸਨ ਓਪੀਡੀ, ਗਾਇਨੀ ਓਪੀਡੀ, ਬੇਔਲਾਦ ਜੋੜਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ਰਤੀਆ ਇਲਾਜ, ਨਾਰਮਲ ਅਤੇ ਸਿਜੇਰੀਅਨ ਡਿਲੀਵਰੀ ਅਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੂਰਬੀਨ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੈਲਥ ਕਾਰਡ ਵੀ ਇੱਥੇ ਚੱਲਦੇ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਦਾਖਲੇ ਦੇ ਲਈ 0% ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਉੱਤੇ ਲੋਨ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 24 ਘੰਟੇ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਾਰਮੇਸੀ ਅਤੇ ਲੈਬੋਰੇਟਰੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ।